हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Vertical and horizontal movement. What do you mean to the here a vertically and horizontal movement here? The slow movement can be further be divided into the vertically and horizontal movement on the basis of the uplifted and subsidence of the part of the earth's surface. That is the most important. The first here a vertically movement. What is here is the vertical movement here? Here the vertical movements originate from to the center of the earth and the effect it is a surface. The consequently is a large scale uplifted or subsidence of a part of the earth as a surface are take place. And this movement are slow and the varied spread and do not a varying change in the horizontal rock strata. And this movement are mainly is associated with the formation of the continent and plateaus. Here these are the known as the continent are the buildings or the plateau is the buildings of movement. Besides this is a movement are also called to the is or genetical movement. There is a epigenetical movement here. The epiros is a Greek language means a continent. In the preview lesson on the rock, you have studied about that is a sedimentary rocks are deposited and formed into oceans and seas. There is a presence of this sedimentary rock is widely spread in a continents. The clearly show that this where the uplifted are arises to form a continents. The contrast to the above, there are the continuous of evidence of the submergence is the buildings and the river valley and cities due to the subsidence into the sea. The sum of such an example include the submarine ascent and building in the Mediterranean and the Crete of Iceland and the ancient city of the Dwarka and the Saurashtra, India. Saurashtra, India is this is a change the clear point the downward to moment of the earth surface. The next here is the horizontal movements and there are a force which act on the earth cross from side to side. And the horizontal is a tangential and the natural there is case a lot of descriptions in their horizontal layer of the straw as they do is involved a good deal of the compressions and tension of the precipitating rock sign. This force act horizontally are the tangentials to be earth as a spherical surface, and these are known as the horizontal and tangential movement. There is a most important and we can divide them into two types. There is a first here force of the compressions and second here force of tension. There is a two types here. The first here is a force or compression. There is the most important involved to the pushing of the rock stress against a hard plane from one side from both sides. To understand there is a working, let us take the piece of the cloth and spread it on the table. Push the cloth with your both hand to about to the center and it will be form a brinkless as a rising up to their down of folded and like views at the rock stairs also is bent in the same fashions and when to the force of compressions act on them from opposite direction. In this way the compressional is a force lead to the bendings of a rock layer and thus the lead to the formation of the fault mountains. In them, to rock strata is a primarily of the sedimentary rock get folded into the wave like a structure, and this process of the bendings of sometimes is a warpings and twistings of rock strata in the refer to as they are folded. And there are folded are called to the anticlinals and down folded is called to the saline. Here show this diagram the earth crust before and the after the folding. There is the most important here a comparison. There is the most important first diagram show here and second here is a shortened crust and the cyclines and endocyclines there is present. There is the most important diagram show their earth crust and the before and as the after folding. The Himalaya, the Rockies are the Andes, the Alps as other of this short has been formed by the computational force resulting the mountain is built on their large scale and this is called to the orogenical movement.
That is the most important. The important also there is a box. There is a most important here. A horizontal moment are produced by the force of compression and tension. The folding is the bending of the rock strip due to the compressions, and the next layers upfolded are called anticlines and downfolded syncline. And folding and gigantics is a scale result in a mountain or building is a moment generally is referred as a or a genesis. There is the most important here. The next here is the force of tension. There is the most important here are the produced when this force are working horizontally in an opposite direction away from a given plan to point under the operation of tensions of tensional force. The rock stairs is a broken or fractured as a result of cracks and fracture of develop. The displacement of the rocks is upward to the downward from their original position along such a fracture is the term to the fracturing. And there is a lines along which is the displacement of the fracture is a rock stair take place is called the fault line. Like which the plan along which is the displacement of the rock stairs take place is known as a fault plan. And the force of tension produces a fault. There is the most important here. The force of tension produces a fault, and this plan along which is the displacement of fractures rock stair lack of place is called it's a fault plan. Here show the most important diagram here of fault. There is a fault here is up store one side tension fault plan and fault scraps and down to one side. There is the most important diagram show here of fault. The force of the compression gives rise to the operation of the force of tensions. Thus, the fault are closely related to the formation of the occurrence of faults. It is an impulse that is a faulting generally lead to are the accompanied by the fracturings and faulting in a rock stair. The faulting result in the formation of well-known relief of fractures such as the rift and the valley and the block is the mountains. A rift is the valleys are formed by the seekings of a rock stair lining between two almost parallel faults. And the classical example of the rift is valley is the wall include to the midland and valley of the Scotland. There is a Thames Valley is the valley of the Nils. There are Dead Sea is the basins and the Great Rift as the valley of the East Africa and the comparisons of few lakes of these regions. Some geographers are there is opinion that the Narmada and Tapti Valley are also rifted valley. The coal is a deposit of the Damodar is a valley is said to be originally is a land in their Sinaitic throat there resembling an rift valley. They here are rift valley and the block mountain here. There is a most important shown in this diagram. The forest valley is a valley right left valley and here. And horizontal is the most important is a rifted valley is a thought there is a steps and parallel well along the fault line. Such as a valley is also called a guardbane. Guardbanes here, a grave is a valley may be also formed by upliftment of two blocks along their fault line. And these uplifted blocks are called horizontal and block mountains. The well now example of horizontal and the wasteland and the black forest mountain on the both side of the Raman rift and the valley in the plateaus and the Palestines and the Transjordan. That is the most important. The scalar pavement is a scap face and the she in the figure. There is a characteristics of feature of the right rift valley and the horizontal. There are very steps as have a highly is a precipitations as a slopes in a continuous line of facing one direction. The scalar pavement of the Western Ghat once looking their Arabian Sea and the thought to be the result of the faulting. There is a crepience of with the Himachal mountain are also ascribed to be a faultings and formation of the narrow Narmada Valley. Here the important point arrive the faulting lead to the formation of the Rift Valley hostel and is a escarpment. And the second Rift Valley is a trough and with the step parallel bell among to the fault line. The next year
A horizontal is a uplifted land marks with a step and slow on the both the sides. On the scrape pattern is a very step, slow is the continuous line along their fault. यहाँ पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर था पृथ्वी के आंतरिक बलों के जो है परिणाम स्वरूप भू आकृतियों का जो विकास, इसके अंतर्गत जो हमारा पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हलचलों के विषय में जो है चर्चा करेंगे। तो कहते हैं मध्य हलचलों के पृथ्वी के जो है धरातल के किसी भाग के ऊपर उठने या धंसने के आधार पर जो है पुण्य जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हलचलों में विभाजित किया जा सकता है। यानी इसको दो भागों में विभाजित करने का प्रावधान है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर जो है ऊर्ध्वाधर हलचलें, यानी ऊर्ध्वाधर हलचलें धरातल के पृथ्वी केंद्र से उत्पन्न होती है और इसके धरातल को काफ़ी प्रभावित भी करती है। इसलिए इन गतियों के कारण बड़े पैमाने पर जो है धरातल के भूभाग जो है ऊपर उठ जाते हैं अथवा नीचे धंस जाते हैं। ये जो है गतियाँ प्राय इतनी मद और विस्तृत होती है कि पृथ्वी के क्षैतिज शैल जो है स्तरों के जो है स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। ये गतियाँ मुख्य रूप से महाद्वीपों तथा पठारों के निर्माण से संबंधित होती है। अंततः इन्हें महाद्वीपीय निर्माणकारी अथवा पठार निर्माणकारी हलचलें भी कहते हैं। महाद्वीपीय निर्माणकारी और पठार निर्माणकारी हलचलें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पिछले पाठ में आपने शैलों के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जाना है और समझा भी होगा। अगर नहीं वीडियो देखा है तो देख लेना, क्योंकि इसमें हमने पिछले चैप्टरों में शैलों की जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। उसके निर्माण में किस तरह के जो है इसका उपयोग है, सारे चीज़ों पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा की है, तो देखना मत भूलना। कहते हैं अब सारे शैल महासागरों तथा समुद्रों में लाए गए पदार्थों के जमाव से निर्मित होते हैं और ये शैलें महाद्वीपों पर विस्तृत रूप से पाई भी जाती है। इस तथ्य से यह पुण्य स्पष्ट हो जाता है कि इन शैलों के ऊपर उठने में से द्वीपों का जो है निर्माण हुआ है। देखिए, जब शैल जो है ऊपर की तरफ उठता है, विस्तृत होता है, तो जनरल सी बात है कि इनके ऊपर उठने की वजह से जो है इन महाद्वीपों का जो है निर्माण हुआ है। कहते हैं ऊपर के वर्णन से विपरीत ऐसे असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें जो है भवन, नदी, घाटी या शहर समुद्र में भूमि के धंसने से डूब गए हैं। कहते हैं मध्य सागर की बात करें तो उसमें क्रेट द्वीप में बने प्राचीन भवन तथा भारत के जो है सौराष्ट्र का प्रसिद्ध प्राचीन नगर द्वारिका समुद्र में डूबे हुए हैं। और इस प्रकार कुछ उदाहरण है। ये परिवर्तन पृथ्वी के धरातल के नीचे धंसने की गति के पूर्णता स्पष्ट करते हैं। आपने देखा भी होगा कि द्वारका जो है अभी भी पानी के अंदर जो है साफ दिखता है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो है समय के साथ परिवर्तन होने का एक संकेत मात्र है। कहते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ने में कि इसमें क्या हमने पढ़ा है, तो ये बात साफ हो जाता है इन पॉइंटों से कि बड़े पैमानों पर धरातल के ऊपर उठने या धंसने से जो है महाद्वीप, पठारों तथा महासागरों का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि ऊर्ध्वाधर हलचलों के जो है महाद्वीप निर्माणकारी हलचलें भी कहते हैं, यानी हलचलों के महाद्वीपीय निर्माणकारी हलचलें भी हम कह सकते हैं। उसके पश्चात दूसरा हमारा प्रकार आता है क्षैतिज हलचलें। देखिए, क्षैतिज हलचलें जो होते हैं कभी कभी आंतरिक बल भूपट्टी पर एक दिशा में जो है दूसरी दिशा की ओर अथवा दोनों दिशाओं में काफ़ी जो है प्रभाव डालते हैं। यानी देखा जाए तो ये कभी इस दिशा में प्रभाव डालती है, कभी इस दिशा में प्रभाव डालती है, यानी दोनों दिशाओं में जो है प्रभाव डालने का इसका प्रावधान है। और इस कारण जो है भूपृष्ठ के क्षैतिज शैलों स्तरों में जो है अत्यधिक परिवर्तन आ जाते हैं। यानी इनके जो है क्षैतिज में जो है शैलों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है और इन बलों के कारण जो है पूर्व स्थापित शैल स्तरों में दबाव या खिंचाव पैदा हो जाती है। काफ़ी दबाव और खिंचाव पैदा होना एक स्वाभाविक बात है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ये बल गोलाकार पृथ्वी के स्तरों में क्षैतिज अथवा सफस रेखा की दिशा में प्रभावित होते रहते हैं। अतः इनको क्षैतिज हलचलें के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज हलचलें कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो होगा संपीड़न बल और दूसरा जो होगा तनाव बल। यानी इसको क्षैतिज हलचलों को हम दो भागों में बांटने का प्रावधान है, एक संपीड़न बल और दूसरा जो है दोस्तों तनाव बल। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है संपीड़न बल। देखिए, संपीड़न बल क्या होती है। कहते हैं वह है जो शैल स्तरों को एक ठोस तल जो है तल की दिशा में खिसकाते हैं अथवा दोनों दिशाओं से दबाव डालता है। यानी ये स्तरों को जो है शैल स्तरों के जो होती है उसको एक जो है कठोर तल की दिशा में खिसकाते हैं अथवा दोनों दिशाओं में जो है दबाव डालते हैं। उनकी क्रियाओं को समझने के लिए आप एक कपड़े का टुकड़ा लो, यानी एक कपड़े का टुकड़ा
हम ले सकते हैं और उसे मेज पर फैला लेते हैं और इस कपड़े को अपने दोनों हाथों से उसके बीच की ओर दबाव डालते हैं तो कपड़ा ऊपर के नीचे की मोड़ पड़ जाएंगी। ये तो जनरली आपने देखा भी होगा, नहीं किया है तो ये एक्सपेरिमेंट आजमा भी सकते हो कि अगर दोनों कपड़ा ले अगर बीच में हम उंगली डालते हैं तो हल्का सा उठना स्वाभाविक बात होती है। शैल सतह भी कपड़े की भांति मुड़ जाते हैं और इस प्रकार जो है संपीड़न बल जो शैल सतहों में मोड़ डाल देते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जो है बलीय पर्वत का निर्माण हो जाते हैं और जिनमें जो है सारे शैल जो है लहरों की भांति मुड़ जाते हैं। और इस प्रकार शैल की जो है मुड़ने की प्रक्रिया को हम वलयन के नाम से जानते हैं, यानी शैलों के जो है मुड़ने की प्रक्रिया को हम वलयन कहते हैं। ऊपर की ओर उठे हुए मोड़ को जो है अपनित तथा नीचे की ओर पड़े हुए मोड़ को जो है अभिनिमित कहते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऊपर की ओर उठे हुए मोड़ को हम अपनति कहते हैं अथवा नीचे की ओर पड़े हुए मोड़ को हम अभिनति कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम भी इस बात को जो है प्रमाणित करेगा। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है और दो एक के साथ दूसरा भी डायग्राम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वलयन से पूर्व तथा वलयन के बाद भूपट्टी। देखिए पहले तो संपीड़न हो रहा था इसमें, अब इसमें क्या हुआ, दबाव डला, जिसके वजह से क्या हुआ, अभिनति बनी। अभिनति का मतलब नीचे दिखाया गया है और अपनीति मतलब ऊपर की उठना। कहते हैं अगर एक क्षेत्र में दबाव पड़ेगा तो दूसरा क्षेत्र जो है ऑटोमेटिक जो है ऊपर उठ जाएगा। तो यही बात हमने जो है टेबल वाला जो कपड़े रख के जो है हमने एक्सपेरिमेंट सोचा था, आपको कहा भी गया था करने के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंट इसी बात को दर्शाता है कि अगर आप एक तरफ जो है दबाइएगा तो दूसरे तरफ उठ जाना एक स्वाभाविक बात रहेगा। और इस डायग्राम से भी आपको कई मानने में क्लैरिटी आपको हो जाएगा। कहते हैं जब वलयन विस्तृत पैमानों पर होता है तो यह पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया से संबंधित होता है। संसार के अधिकांश महान पर्वतमालाएं जैसे हिमालय हो जाए, रॉकीज हो जाए, एंडीज हो जाए, अल्प्स तथा इसी प्रकार के अन्य पर्वतमालाओं का निर्माण संपीड़न बलों के विस्तृत पैमानों पर हुई प्रक्रियाओं का परिणाम स्वरूप ही हुआ है और इन गतियों के जो है पर्वत निर्माणकारी हलचलें के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस बात को अगर प्रमाणित करने की कोशिश करें तो दो बात तो यहाँ हमारा क्लियर हो गया है कि क्षैतिज हलचलें संपीड़न तथा तनाव बलों से उत्पन्न ही होती है, यानी क्षैतिज हलचलें जो होती है सदैव संपीड़न तथा तनाव बलों के कारण ही उत्पन्न होती है। दूसरी बात ये स्पष्ट हो गया है कि संपीड़न द्वारा शैल सतहों में मोड़ पड़ने के बल्ले कहते हैं, यानी संपीड़न द्वारा शैल सतहों में मोड़ पड़ने को हम क्या कहते हैं, वलयन कहते हैं। दूसरा जो यहाँ पर टाइप है तनाव बल। देखिए तनाव बल तब पैदा होता है जब शक्तियों को दो विपरीत दिशाओं में जो है धरातल के समांतर कार्य करती है, अर्थात जब शक्तियाँ किसी दिए गए बिंदु या तल के दोनों ओर कार्य करते हैं तो तनाव पैदा होती है। जब तनाव बल अधिक तीव्र होते हैं तो शैल सतहों यानी परतों में दरार पड़ जाती है और ये टूट जाती है। इसका फलस्वरूप क्या होता है कि दरारों या भ्रष्ट पैदा हो जाते हैं। जब दो दरारों के बीच के शैल ऊपर अथवा नीचे की ओर विस्थापित हो जाते हैं तो इसे हम भ्रंशन कहते हैं, यानी इसको भ्रंशन के नाम से जाना जाता है। जिस रेखा के साथ टूटे हुए शैल विस्थापित होते हैं अथवा खिसकते हैं उसे हम भ्रंश रेखाएं कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम बात करें तनाव बलों को हम कारण जो है भ्रंश बनते हैं। जिस रेखा के साथ टूटे शैल जो है खिसकते हैं उसे हम जो है भ्रंश रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको भ्रंश जो है डायग्राम दिखाया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भ्रंश दिखेंगे और उत्प्रेक्षित भाग दिखेगा, तनाव दिखेगा और दक्षिण भाग दिखेगा। तो ये काफ़ी डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं संपीड़न की शक्तियों के कारण तनाव की शक्तियां सक्रिय हो जाती है और इस प्रकार जो है भ्रंशों का निर्माण जो है मोड़ों के बनने की प्रक्रिया के साथ होती है। और इसका तात्पर्य यही हुआ कि वलयन की प्रक्रिया ये शैलों के परतों में भ्रंश निर्मित होते हैं और यह टूटती है, यानी ये सदैव छोटी मोटी टुकड़ाओं में जो है धीरे धीरे टूटती है। बात यहाँ पर क्लियर हो गया है कि कोई चीज़ पर दबाव पड़ेगा तो उसका टूटना एक स्वाभाविक घटना मानी जाएगी। कहते हैं भ्रंशन की प्रक्रिया के कारण दरार जो है घाटियों तथा खंड पर्वतों का निर्माण हो जाती है। तब दो अलग अलग समांतर दरारों के बीच स्थिर शैल स्तर जो है नीचे की ओर खिसक जाते हैं तो ये दरार जो है घाटी का निर्माण कर देते हैं। जैसे हम चित्र में भी देखेंगे संसार की प्रमुख दरार घाटियों में स्कॉटलैंड की जो है मध्यवर्ती घाटी और राइन नदी घाटी, नील की घाटी, मृत सागर बेसिन तथा जो है पूर्वी अफ्रीका की महान दरार घाटी जो है जिसमें इन क्षेत्र की कुछ झीलें शामिल है जो इसके अंतर्गत आता है। कहते गणना की है
गणना किया गया है। इसमें सारी बातों को दर्शाने की कोशिश भी किया गया है। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने ये नर्मदा तथा ताप्ती घाटी को भी दरार घाटी मानते हैं, यानी सबकी अपनी विचारधारा है। इसलिए जो है बहुत से जो है भूगोलवेत्ताओं ने ये बात साफ किया है कि नर्मदा और ताप्ती घाटी भी इन्हीं दरारों के कारण ही उत्पन्न हुआ है। दामोदर नदी घाटी की जो है कोयला निक्षेपण आरंभिक रूप में एक अभिनेत्री जो एक दरार घाटी से मिलती जुलती है में काफ़ी जमाव हुए बताए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दरारी घाटी तथा खंड पर्वत यहाँ दिखाने की कोशिश किया गया है, जिसका निर्माण जो है संभव हुआ है। यहाँ रिफ्ट घाटी दिख रहा होगा और बृहस्पति पर्वत और बृहस्पति पर्वत भी दिखाने की कोशिश किया गया है। देखिए कोई चीज़ में अगर दबाव पड़ेगा तो जनरल सी बात है कि उसका निर्माण जो होगा ऊपर की तरफ होगा। तो ये साफ यहाँ पर चित्र दर्शाने की कोशिश किया है कि दरारी जो है घाटी तथा खंड पर्वत के कारण जो है कई चीज़ों का निर्माण होना एक स्वाभाविक बात है। कहते हैं दरार घाटी जो है भ्रष्ट रेखाओं के सहारे बनी दो समांतर दीवारों के बीच में ये धंसा हुआ होता है, भूभाग होती है और इस प्रकार की घाटी को जो है ग्रेवन भी कहते हैं। दरार घाटी का निर्माण दो दरारों के बीच वाले स्थल खंडों के ऊपर उठने से भी हो सकता है, यानी दो दरारों के जो है खंड को ऊपर उठने से भी होता है और इन पर उठे हुए खंडों को जो है हस्ट या खंड पर्वत भी कहते हैं। राइन नदी के दोनों किनारों के साथ जो फैले जो है बस जेस तथा ब्लॉक फॉरेस्टेड पर्वत तथा फिलिस्तीन तथा ग्रेडेन के पठार खंड पर्वतों के प्रसिद्ध उदाहरण में से एक माना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर हम कागर दरार घाटी तथा खंड पर्वतों के विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो वो एक दिशा में फैले हुए तीव्र एवं खड़े किनारे वाले ढाल होते हैं। अरब सागर की ओर के दक्षिण जो है पश्चिमी घाट के कगार, विंध्याचल के कगार और नर्मदा नदी के जो भ्रषण का ही परिणाम होता है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट होता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार पर्वतों का निर्माण हुआ है और पर्वत के निर्माण में जो है किस प्रकार के दबाव जो है यहाँ पर कार्यरत है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला टॉपिक देखना मत भूलना, जिसमें हम बहुत बातें करेंगे ज्योग्राफी के। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट रहता है कि पहली बात तो ये कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। दूसरी बात ये रहता है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चलो सब्सक्राइब करके रखना, आपके हित में होगा, तभी जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और आप तिरपान स्टडी सेंटर के बनाए हुए वीडियो का भी फ़ायदा उठा पाओगे।